This call is now being recorded. Good evening, everyone. Today's webinar is on role of physiotherapy in the field of fitness by Dr. Surjit Chakraborty sir. Dr. Surjit sir is the founder, president, and the chief resource person of Indian Academy of Fitness Training (IFT). He also holds a PhD degree and has more than 21 years of teaching experience. So, without any delay, on behalf of entire BITS Physiotherapy fraternity, I welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you. I request all the participants to keep their mic mute for the smooth conduction of the webinar. Thank you. Over to you, sir. Thank you very much, Harsha. Thank you very much, Sarfraz and Mehul sir also. It has been always a pleasure to associate with all of you and specifically with your beautiful city, Baroda. We would love to start with a small prayer. Thank you. Now, before we start off, certain things that I would always love to discuss with. I hope that all of you are healthy and fine. I keep listening about news from our down south Karnataka, about Gujarat, and specifically about Ahmedabad and Baroda. And I come to know that there are lots of the corona related problem existing and going on in your city also. So I'd always request all of you to take care and keep safe at your home and your workplaces. These are very important things to be understood that if you keep healthy, all the other purposes will be solved. If you are fit and fine, you will probably do better in your profession also. You will do better probably in your earning as well. But if you are not healthy and if you fall sick, then in that situation, what is the use of extra learning? So that is the reason why it is very, very important for all of us to understand that if you really want to utilize what we are going to hear for the next 40-45 minutes time, Dr. Harsha, it's 40 minutes time. How much time do you have? Dr. Harsha? Yes, sir. Sir, 1 hour. 1 hour. All right. Great. So we will be discussing in this next 1 hour time a bit about physiotherapy's role in fitness, and then also we'll discuss certain important components about business. These are the things that we'll go on and highlight into. First of all, let's discuss a little bit about business and then we'll get into the exercise section. Many of you must be physiotherapy professionals who are getting into physiotherapy clinics and other activities immediately after your final year and after your course finishes off. So you're in a juncture to decide about your future. Now, in such a situation, I have a very important question and an important answer to that question also. We have to, as a person who has lived this profession for last 21 years, has understood a particular fact and a secret which I would love to share with all of you. Your profession is specifically a clinical profession, a profession which is based on your clinical activity.
Yes, academics is an important component, no doubt of it. But the heart and soul of your profession lies in the clinical activity. And when I'm talking about a clinical activity, I'm talking even about good quality physiotherapy clinics as well. And when we are talking about a youngster who is passing out and opening up a physiotherapy clinic, he needs to plan his business properly. Let all of us remember a very important fact, specifically even the teachers also. If we do not promote and do not encourage our students to open up sustainable clinics, sustainable centers where they can earn from, the profession is not very successfully going on and forward. That is very, very important. So if you really want to learn and expect the colleges also to do perform well, sustainable clinics must be there. This is very, very important point, because if the student professionally does good, he doesn't need to tell about the college. Everyone else will see and come to us. This is very important for all of us to remember. So the soul of the business lies in how well and how good is my student earning, and how is he learning for that earning. As I usually tell in most of my classes, the spelling of learning states is Learning. Learning. If you remove L, remains earning. If you don't know or don't learn how to earn well, probably you're spaced out and you're wrong somewhere. You're wasting your time. And that is the reason why workshops are meant for. That is the reason why colleges are meant for, to teach how you can earn better, ethically. This is very, very important thing to understand. And that's where the physiotherapy business component needs to be highlighted for. Now, before we start off, I understand many of you who are listening to me are from Gujarat, and Gujarat is world famous, and I'm proud about that. World famous to have quality businessmen, fantastic businessmen, and of course it will be probably only a tip of an iceberg for me to teach some tricks of business, but let me try that. Let us discuss a very important point, my dear friends, my dear students. When you're opening up a clinic, when you're opening up your own center, I'm sure the most luxurious thing that you will be doing for your center is to buy a space, or probably rent a space. And when you're renting or buying a space, either the rent or the EMI of the space will be running around you. That is very, very important. And the most important thing, as is told in Hindi, रेंट का कांटा या लोन का कांटा 24 घंटे चलता है, ईएमआई का कांटा 24 घंटे चलता है. आप 24 घंटे काम नहीं करते हो, यानी कि अगर आप अपने क्लिनिक में 8 घंटे काम करके उसको बंद कर रहे हो, तो आपको अपना क्लिनिक अंडर यूटिलाइज लगेगा. दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. एंड यू आर पेइंग 24 आवर्स 8 घंटे का कट कर दीजिए, जो बचा 16 घंटा है, आप 16 घंटे का पैसा फ्री में पे कर रहे हो. This is very, very important calculation. Before setting up a clinic, you must understand and land up calculating. Now, let me see and let me tell you how do we utilize this further. क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर आप रेंट किए हुए जगह पे या लोन का ईएमआई भरते हुए जगह पे केवल 8 घंटे का काम कर रहे हो और अपने पेशेंट्स देख रहे हो और उसे बंद कर रहे हो, तो आप लॉस में हैं. उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जरा सीखेंगे. उसको सीखने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि अगर फिटनेस इंडस्ट्री को आप कंबाइन करते हो फिजियोथेरेपी क्लिनिक के साथ, जो कि होना क्यों चाहिए वो भी हम हाईलाइट करेंगे अब थोड़ी देर में. पहले बिजनेस सीख लेते हैं. तो अगर सुबह के सेक्शन में एक फिटनेस क्लास होता है, मिड सेक्शन में एक फिटनेस क्लास होता है, इवनिंग में एक फिटनेस क्लास, और प्रोबेबली नाइट टाइम में एक फिटनेस क्लास आप लेते हैं, जो फिटनेस क्लास में तकरीबन 8 से 10 क्लाइंट्स हैं, और 8 से 10 क्लाइंट हर बैच में है. आप न्यूनतम बड़ौदा के सिनेरियो में न्यूनतम मिनिमम यू विल बी पेइंग एटलीस्ट 2500 पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हैं. अगर वो 2500 रुपीज आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, तो 10 क्लाइंट्स का हो जाता है, कितना होता है, खुद गिन के देखिए.
right? Somewhere around 25,000, right? 25,000 into 4 groups, that costs around 1 lakh rupees per month of income from the same space by giving just 4 hours, 4 different hours. आप कोई दूसरा स्पेस रेंट नहीं कर रहे हैं, आप कोई दूसरे स्पेस की ईएमआई नहीं भर रहे हैं, आप अपने ही स्पेस को दे रहे हैं और उसी स्पेस में आप खुद ट्रेन कर रहे हैं। आप यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, तो शायद आपको एक ट्रेनर रखना, इंस्ट्रक्टर रखने की जरूरत पड़े, उसका सैलरी पे करने की जरूरत पड़े। थोड़ा घुमा देते हैं इसको। अगर आप ट्रेन है तो if you are trained, that instructor's job also you are doing, so that income which you are deriving from your clinic as a fitness center, it is completely becoming your own property. This is something that you need to understand, and that is why it is so very much important, and I always insist that this should be a component of our curriculum, as well as this should, every physiotherapist should plan to have a fitness section in their physiotherapy clinic. Now, what kind of fitness center, किस तरह का fitness center चलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है. Let us see an example. आप अगर इस फिटनेस बिजनेस में जाते हैं तो इस फिटनेस बिजनेस में सबसे पहले आपको कुछ कंपोनेंट ध्यान में देने होते हैं. एक, वेट रिडक्शन के लिए लोग आएंगे, दूसरा शेपिंग अप के लिए लोग आएंगे, तीसरा शायद अच्छा डांस वर्कआउट देखने के लिए लोग आएंगे. क्या हम लोग भी ये करें जरूर, नुकसान नहीं है इसमें, जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी ध्यान देना है. और वो क्या, वो करो जो आम जनता या आम इंस्ट्रक्टर्स नहीं कर सकते हैं. जैसे कि क्लिनिकल फिटनेस. डायबिटीज में क्या करें, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या करें, हार्ट पेशेंट में क्या करें, आर्थराइटिस में क्या करें, जेरियाट्रिक ग्रुप के लिए फिटनेस कैसे हो, चिल्ड्रंस के लिए फिटनेस कैसा हो, ये आम फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता. आपकी जरूरत पड़ेगी, एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट की जरूरत है उसमें. तो इसीलिए जब एक फिजियोथेरेपी सेंटर अपने क्लिनिकल फिटनेस सेंटर खोलते हैं तो वो केवल अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट नहीं रहते, क्योंकि आप जब चिल्ड्रंस क्लास लेने के लिए जाओगे तो चिल्ड्रंस क्लास आप अपने क्लिनिक के अंदर नहीं लोगे, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर अपने स्कूल में जाओगे, वहां पे अपने इंस्ट्रक्टर्स अपने तैनात करोगे या खुद ट्रेन करोगे. इमेजिन करिए. अब थोड़ा सा और बिजनेस देखते हैं. आप में से कई पेरेंट्स होंगे और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं. एक स्कूल में एक क्लास के 2 या 3 सेक्शन होते हैं. 2 या 3 सेक्शन में, हर सेक्शन में 30 बच्चे होते हैं. अब याद रखिए, 30 बच्चों को अगर आप अच्छी क्वालिटी फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं जो उनके ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ के लिए बनाया गया हो और एथिकली और साइंटिफिकली प्लान किया गया हो, कौन सा पिता और कौन सा माता इसके पीछे 1000 रुपए नहीं खर्चेगा. एक सेक्शन में 30 क्लाइंट, ऐसे एक क्लास में 90 बच्चे, एक के ऊपर 1000 रुपए. अगर आप ठीक तरह से समर कैंप्स भी प्लान करो जिसमें आप केवल एक सीजन में आप प्रोग्राम प्लान कर रहे हो और 2-3 स्कूल्स को टारगेट करो, तो एक स्कूल से, एक क्लास से lakhs of rupees टर्नओवर होता है. लेकिन क्वालिटी प्लानिंग की आवश्यकता है. ये केवल मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ. ये तो हो गया चिल्ड्रंस, मजाक के तौर पे देखा जाए, लेकिन दुख भी है इस बात में. डायबिटीज इज कॉल्ड एज अ रिच मैन्स डिजीज. जिसके पास डायबिटीज है उसके पास पेइंग कैपेसिटी भी अक्सर कई बार होता है. आप क्यों नहीं देख सकते उसको, आप क्यों नहीं ट्रीटमेंट दे सकते, आप क्यों नहीं उसको फिटनेस प्लानिंग कर सकते हैं. वर्ल्ड वाइड ये जानकारी है कि अगर डायबिटीज का परमानेंट कोई इलाज है तो वो है फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस है तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी है. हम और आप क्यों नहीं इस ट्रेनिंग को करवाते हैं. इसी वजह से इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग पिछले तकरीबन 13 साल से इन प्रोग्राम्स को हाईलाइट करते आई है कि दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट इज बिलोंगिंग टू फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इफ वी डोंट टेक इट and then keep cribbing our profession is not giving us enough money, the fault is with us. It is not with the profession. It is only we have not planned it properly, और जहाँ से अर्न करना है वहाँ अर्न नहीं कर रहे हैं. फिर कोई और अर्न कर रहा है उसमें से, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई सिक्स पैक, कोई जीरो फिगर वाला इंसान अर्न कर रहा है, कोई डांसर अर्न कर रहा है. Why cry? Because it was available to us, we didn't do it.
तो इसीलिए आपको और हमको ये प्लान करना है कि क्लिनिक्स होना है और क्लिनिक्स में डबल या ट्रिपल प्लानिंग होनी चाहिए। एक सोर्स से बहुत सारे तरीके से अर्न करना है, एक जगह से मल्टीफैसेटेड अर्निंग करनी है, तभी जाके उस पैसे का आप पूरा फायदा उठा सकते हो जो आप रेंट या ईएमआई के रूप में पे कर रहे हो। दिस इज अबाउट बेसिक्स अबाउट बिजनेस, क्योंकि अगर आप इस प्लानिंग को नहीं कर रहे हो तो हम और आप पूरी तरह से अपने क्लिनिक में लॉस में जा रहे हैं। दिस इज वाइटल टू बी अंडरस्टूड। अब जब हम लोग ये सिनेरियो सीख चुके हैं, क्यों हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजें, अब इस फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिटनेस इंस्ट्रक्टर के लिए क्यों भेजें? मेरा सवाल आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मेरी या आपकी माँ, उनको अगर डायबिटीज हुआ है और उस डायबिटीज में उनके डॉक्टर ने कहा है कि उनको गाइडेड एक्सरसाइज की आवश्यकता है, आपकी गली के दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया जिम चल रहा है लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन का पता नहीं है, लेकिन फिगर बहुत अच्छा है उस लड़के का, क्या आप अपनी माँ को उसके पास भेजने में पसंद करेंगे या इच्छुक रहेंगे? तैयार है? आप खुद मन में सोच लीजिए, मैं तो नहीं तैयार हूँ, मैं पहले उसकी क्वालिफिकेशन को देखूंगा, तब मैं अपनी माँ को उसके पास भेजूंगा। यानी कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट का फिटनेस के विषय में ज्ञान लेना एक समाज सेवा भी है, आपकी नहीं। कई सारे ऐसी माताएं हैं जो वेट कर रही हैं लेकिन उनके पास ऐसा फिटनेस सेंटर नहीं है। आप सोचिए 120 से ऊपर 130 के करीब 130 करोड़ की जनता में कितनी कैपेसिटी है फिटनेस इंस्ट्रक्टर की, और ये डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज को सिखाएं नहीं और इसको हम लोग फिर फाइनेंशियल रूप में टर्नओवर नहीं करें तो फिर गलती किसकी है? हमारी गलती है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज, अब बड़ा फैशनेबल है कि हाँ भाई हम लोग सभी लोग पैट्रियोटिकली ये कर रहे हैं कि भाई हमको मजाकिया तौर पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि हालांकि इसे ऑफ कोर्स कोई पब्लिक रूप में आप प्रेजेंट करोगे तो शायद नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश के मुकाबले में अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने हिंदुस्तानी चीजों को ज्यादा जोर देना है, ज्यादा हमें बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हिंदुस्तानी चीजों का इस्तेमाल करना है। आपके एक्सरसाइज थेरेपी किताब से लेकर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की किताब ले लीजिए, न्यूरोलॉजी की किताब ले लीजिए, हिंदुस्तानी किताब है कहाँ? हिंदुस्तानी ऑथर की किताबों का हम तवज्जो कहाँ देते हैं? इसी वजह से सबसे पहले अगर हमको कुछ करना है तो सबसे पहले होना है रिसर्चेस, क्वालिटी रिसर्चेस, जिससे हम पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले सके। और ये रिसर्चेस फिटनेस की इंडस्ट्री में भी जरूरी है। जब अपने क्लाइंट्स को देखें, उनको डॉक्यूमेंट करें और उसके रिसर्चेस आप प्रेजेंट करें। जब ये प्रेजेंटेशन होगा क्या? आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, आपकी अपनी चीजें होंगी, जिससे लोग ठीक होंगे और इसको सीखने के लिए लोग आपके क्लिनिक में आएंगे। ये बहुत जरूरी। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सबसे पहले सीखने के बाद या कोई प्रोग्राम करने के बाद सबसे पहले इच्छा रहती है कि दूसरों को सिखाने लगे। गलत आइडिया है। पहले ये पब्लिक में जाइए, पब्लिक को ठीक करिए। जब पब्लिक ठीक होंगे तो उसकी देखा देखी लोग आपके पास सीखने भी आ जाएंगे। तो ये दो तरफा वार है। अगर आप अपने क्लिनिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो एकेडमिक्स भी होगा और साथ में साथ आपका क्लिनिकल ग्रोथ भी होगा। अब जो लेडीज मुझे सुन रही हैं उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जो लगभग मैं हर क्लास में अपने सारे गर्ल स्टूडेंट्स को बताता हूँ। बच्चों देखो, जब आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, जब आप अपने फैमिली की प्लानिंग कर रहे होते हो, तो कुछ समस्याएं आपके जीवन में जो हर महिलाओं के जीवन में आती है, और वो होता है मैटरनिटी लीव, जो कि एक मेजर समस्या आती है। मैटरनिटी लीव सरकारी तौर से तो 6 महीने की होती है, लेकिन ये 6 महीने में हमारा कोई भी काम मैटरनिटी का पूरा नहीं हो पाता है। बच्चा 6 महीने में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। आपको ज्यादा छुट्टी की जरूरत होती है। एक तरफ फैमिली का रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स रहता है, एक तरफ बच्चे का डिमांड रहता है, और अगर एक तरफ आप हार्डकोर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल डिमांड है। एक महिला इस उम्र में जहां पे वो मैटरनिटी स्टेज से पार हो रही है, 3 तरफा टीयर हो जाती है। किसको मैनेज करे, किसको नहीं मैनेज करे। इसका इलाज भी आपका क्लिनिक है। क्यों आपका क्लिनिक है वो आप ठीक से ध्यान से समझिए। आपका क्लिनिक आपका पहला बच्चा है, उसे पाल पोस कर बड़ा करिए, वो आपके पूरे परिवार को संभाल लेगा।
और मजेदार बात यह है, थोड़ा चालाकी की बात यह है कि अगर आप मैरिज से पहले अपनी क्लिनिक प्लान कर लेते हैं, अपना फिटनेस सेंटर प्लान कर लेते हैं, तो होता क्या है इससे कि आप एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह मैरिज में जाते हैं. So everybody accepts you as a successful woman, and I'm not talking from the dry cloud. Many of my students are doing that. Many of my girl students are doing that, practicing, developing their clinics, becoming successful, and then getting married. So what happens when they are getting married? On a funnier aspect, they are getting married in a package. The girl with her clinic. So when it comes, they are not bound to any permission of the future home they have to get married to. They are successfully running their center. इससे होगा क्या? जब आप ये मैटरनिटी सेक्शन में जाओगे, तब आपके पास डिपेंडेंट जॉब की जरूरत नहीं है. क्या आपको छुट्टी मांगने की जरूरत है? आप केवल 2 घंटे 3 घंटे में मैनेज करके अपने स्टाफ के साथ मैनेज करके क्लिनिक को बड़ी अच्छी तरह से रन कर सकते हैं. ये सहूलियत तभी पॉसिबल है जब कुछ अपना है, छोटा है पर अपना है. लेकिन और आपके गुजरात में तो ये कहना है ना बच्चों कि नौकरी कितनी भी बड़ी हो, आखिर किसी की नौकरी है. अपना कितना भी छोटा हो जाए, आखिर अपना ही है. तो इस अपनी चीज के ऊपर जब हम भारतीय संस्कृति के मानने वाले जोर नहीं देंगे, तब तक हम लोग केवल डिपेंडेंट मेंटालिटी के ही होंगे. याद रखिएगा एक बहुत जरूरी चीज, हम लोग दूसरे देशों से मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है. नंबर भी आ रहे हैं कि भाई हमारा 5th इकोनॉमी है, 6th इकोनॉमी है. लेकिन याद रखिए हमारी इकोनॉमी केवल खरीदार की इकोनॉमी है, विक्रेता की इकोनॉमी नहीं है, सेलर की इकोनॉमी नहीं है. क्योंकि हम अपने चीजों को उजागर करते ही नहीं है. आप अपने सेंटर्स में ट्रीट करते हैं, कितने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं अभी तक? सोचिएगा जरा. नहीं बनाए हैं तो हमारी गलती है, हमारा समय हम वेस्ट कर रहे हैं. इसीलिए प्रोटोकॉल्स बनने हैं, सेंटर रन करना है, फिटनेस होना है, रिसर्चेस होने हैं, प्रोटोकॉल्स बनने हैं और वो पब्लिकेशंस होने हैं. जब ये होता है तब आपका नाम उन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से जोड़ा जाएगा. जब ये जोड़ा जाएगा तो उससे भी इनकम आता है. चारों तरफ से मैंने आपको बिजनेस बताया. क्यों बताया? एक फिजियोथेरेपिस्ट का वहां पे होना है, ये भी आपको बताया. अब आगे सीखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या बदलाव ला सकता है. भाई हम फिटनेस इंडस्ट्री में किसके साथ कम्पीट कर रहे हैं और क्या हम ऐसा खास कर सकते हैं जो दूसरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स को हम बीट कर सकें. याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी चाणक्य नीति बताते हैं. अपने दुश्मन को वहां मारा जाता है वहां जहां वो कमजोर हो, वहां नहीं जहां वो ताकतवर हो. आप जब एक डांसर से कम्पीट कर रहे हैं तो वो आपसे डांस में बहुत अच्छा है. आप जब किसी बॉडी बिल्डर से कम्पीट कर रहे हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग में या मसल शेप अप में बहुत अच्छा है. आप किसी 0 फिगर वाली लेडी से जब कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट में कह रहा हूँ कि आपके घर के सामने में दूसरा सेंटर चल रहा है, तो वो आपसे वेट रिडक्शन में बहुत अच्छा कर रही हैं. लेकिन कहाँ वो नहीं कर सकती हैं? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से चीजें दिखती हैं. इसी वजह से आपका मार होना चाहिए किस तरह से आप अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह का केयर दे रहे हैं. ऐसा कोई भी इंसान, बच्चा, स्टूडेंट, प्रोफेशनल जिसने एक बार भी किसी जिम को अटेंड किया है तो ये तो जानते ही होंगे कि जनरल ट्रेनिंग अलग होता है और पर्सनल ट्रेनिंग अलग होता है. पर्सनल ट्रेनिंग के रेट डबल ट्रिपल होते हैं, कहीं हाई चार्जेस होते हैं. तो जब आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो, किस वजह से एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? कोई आपके तरफ पर्सनल ध्यान दे रहा है, इसके वजह से आप पर्सनल ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो. एक डॉक्टर अगर आपको पर्सनल ध्यान दे तो आपको कितना पे करना चाहिए? उस पर्सनल ट्रेनिंग से भी ज्यादा. आप जब अपने क्लाइंट्स का पर्सनल ख्याल रख रहे हो, ये अपने क्लाइंट से जरा पूछिएगा कि भाई एक मेडिकली क्वालिफाइड पर्सनल थेरेपिस्ट आपका पर्सनल अटेंशन ले रहा है, उसके अनुसार चार्ज नापिए या उसके अनुसार चार्ज को महसूस करिए. जब ये चीजें आप अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करते हैं, दिस बिकम्स समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फिटनेस बिजनेस प्लानिंग. क्योंकि अगर आप ये फिटनेस बिजनेस इस तरह से प्लान नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका कंपैरिजन होने लगे कि मिस सो एंड सो इज सच ए ग्रेट डांसर, आप तो नहीं कर पा रहे हो. तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या-क्या है. आपकी प्रायोरिटीज आपकी दूसरे क्लाइंट की सेफ्टी है, राइट? तो इस तरह के जब प्रेजेंटेशन होता है तो डेफिनेटली यू विन इन योर बिजनेस. अदरवाइज यू मे बी स्पेस्ड आउट. आप हो सकते हैं कि महसूस करें कि आप हार रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं अपने कंपटीटर से.
अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट। अब समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे कि भाई एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्या जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट वहां क्यों होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग योगासन कर रहे हैं। जब हम लोग योगासन कर रहे हैं तो योगासन के दौरान हम लोग पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन इज बेसिकली अ लॉन्ग सिटिंग टो स्ट्रेच। अभी अभी हाल फिलहाल में योग दिवस गया है तो आप सभी प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, लेकिन समस्या यह है कि हमारी क्लाइंट जो है इतने से आगे झुक नहीं पा रही है। क्या करें? सिलेक्ट करें, पास करें, फेल करें, क्या करें? क्योंकि क्लाइंट तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। क्या करें? निकालने बोले अब तुमसे तो हो नहीं रहा है, अब क्या किया जाए उसके साथ? आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली मैकेनिक्स का नॉलेज यूज करना है। मैकेनिक्स का नॉलेज जब आप यूज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्पाइनल फ्लेक्शन एक अकेला सिंगल मूवमेंट नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, जिसमें जुड़ा हुआ होता है साइड फ्लेक्शन, जिसमें जुड़ा हुआ होता है थोड़ा बहुत रोटेशन। इन सभी चीजों को यूटिलाइज करके अगर आप पहले इनको फ्री कर लें तो उस समय में ये स्ट्रेच भी आसान हो जाएगा। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट, हमारा इस एक्सरसाइज से पर्पस है अपने बैक एक्सटेंसर्स को पुल करना या स्ट्रेच करना। और उस इंसान को जब हम देख रहे हैं कि वो खींच नहीं पा रही है तो हम क्या आधे रेंज तक नहीं रख सकते हैं जहां पे हम केवल काफ पकड़ के इसे स्टेबलाइज कर पाए? तो इतने में अगर हम कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसमें बैक स्ट्रेच प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कुछ गलतियां, कोई इस तरह से कर रहा है और स्ट्रेच आगे तक ले आ रहा है, पहुंच तो गया है लेकिन उसकी पीठ की हालत क्या है? बेंड है, स्लाउच्ड है, नेक भी स्लाउच्ड है। कर तो रहा है लेकिन शायद एक जो बेसिक योगा टीचर है शायद इस मैकेनिक्स को ना समझाए, लेकिन आप समझा पाओगे कि जब नेक और थोरैक्स इस तरह से अबनॉर्मली बेंड है तो उस समय में फेशियल स्ट्रेच या नर्व स्ट्रेच बहुत अधिक रहेगा और इस वजह से आर्म पेन और नेक पेन भी शुरू हो सकता है। कौन समझाएगा? एक बेसिक योगा टीचर और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। आप सोचिए, आप डिसाइड करिए। मैं ये सारा चीज बताने के बाद एक ही सवाल पूछने वाला हूँ कि आप डिसाइड करिए कि आपका होना वहां जरूरी है या नहीं है। फिर आप आगे की सोचिएगा, आगे की प्लान करिएगा। डायबिटीज क्लिनिक रन कर रहे हैं, डायबिटीज क्लिनिक में रन करते करते हमने सीखा कि भाई मंडूकासन बहुत जरूरी है। मंडूकासन के बगैर हम डायबिटीज, स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज में हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। मंडूकासन कैसे किया जाए, ध्यान से देखते हैं मंडूकासन करने का तरीका, और उसके बाद मेरे कुछ सवाल होंगे, उसका मनी मन आप जवाब दीजिएगा। आप अगर जवाब नहीं भी दे पाए, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है तो मैं शायद आपके जवाब को ना सुन पाऊं, मैं आपको खुद जवाब दे जाऊंगा कि करना कैसे। मंडूकासन के लिए बैठना वज्रासन पे है, नेवल का पॉइंट देखना है, आजू बाजू फिस्ट रखने हैं, ब्रीथ आउट करना है, टमी एक्सकेवेट करना है और बेंड डाउन करते हुए प्रेशर डालना है। ये है मंडूकासन। फैंटास्टिक एक्सरसाइज फॉर एनी पर्सन हु इज हैविंग diabetes, any person who is having problems related to ovary, problems related to constipation, GI tract, सभी के लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। आपने देख लिया एक्सरसाइज को, आपने इस एक्सरसाइज को समझ भी लिया। फिर से एक बार दिखा देता हूं, नेवल के आजू बाजू फिस्ट रखा गया है, और हम बेंड डाउन कर रहे हैं। जब ये बेंड डाउन हो रहा है तो बहुत बढ़िया प्रेशर क्रिएट हो रहा है एब्डोमेन के अंदर, और उसके वजह से आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस स्टिमुलेट हो रहे हैं। हमारा पर्पस कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करना है। कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होते हुए सर्कुलेशन एनहांस होता है, और जब सर्कुलेशन एनहांस होता है तो न्यूट्रिशन बढ़ता है, आइलेट सेल्स के फंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मेरा सवाल, जो डायबिटिक पेशेंट आपके पास आ रहा है, हो सकता है कि वो ऑर्थोपेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है कि उसके लिए ऐसा बैठना भी सपने वाली बात हो। क्या करेंगे? अभी मंडूकासन तो दूसरे रूप में किया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से उस एक्सरसाइज की फिजियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, और एक नॉर्मल टीचर नहीं जान सकता। फिर आवश्यकता है एक क्वालिफाइड, मेडिकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की, और इसी वजह से मंडूकासन को आपको नी बेंड करना,
एकदम आवश्यक नहीं है। आपका डायबिटीज के लिए इफेक्ट चाहिए तो एब्डोमिनल कंप्रेशन काफी है, और एब्डोमिनल कंप्रेशन मैं चेयर के ऊपर भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे। एब्डोमिनल कंप्रेशन के लिए मैं चेयर के ऊपर बैठ रहा हूँ और एक पिलो अपने एब्डोमेन के करीब रख रहा हूँ, और उसी एब्डोमेन के ऊपर मैं अपने फिस्ट प्लेस कर रहा हूँ राउंड अबाउट नियर द नेवल। ब्रीथ आउट एंड बेंड डाउन। दो तरफा वार, फिर से चाणक्य की नीति क्या किया है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो नी बेंडिंग तो मेरा बहुत कम हो ही गया, उतना तो नहीं है जितना वज्रासन में था। अब पिलो के वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे बड़े आसानी से कम बैक बेंडिंग करते हुए मिल जा रहा है। कौन बताएगा? एक सिंपल टीचर, योगा टीचर, या एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जिसने योग सीखा हुआ है। ये सीखना, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरा पर्पस यहाँ पे किसी टीचर को डिलिनिएट करना नहीं है। मैं उन्हें भी एनकरेज कर रहा हूँ कि आपको भी अपना मेडिकल क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, और ये सभी टीचर्स जानते हैं। जब आप शरीर की एनाटॉमी नहीं समझो, जब आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी नहीं समझो, तो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसे एक्सप्लेन करने में आप प्रॉब्लम में रहेंगे। और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आप अच्छा एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके पीछे एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये आपने देखा मंडूकासन, और मंडूकासन को कैसे मॉडिफाई किया गया। अब आप सोचिए कि आप अगर नहीं होंगे तो इस चीज को करने में कितना मेहनत और कितनी तकलीफ दूसरे लोगों को होने वाली है जिनका बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है। इसी वजह से आप समझिए कि आपका फिटनेस सीखना, आपका इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लेना, आपको इसके विषय में इन डेप्थ नॉलेज लेना केवल लर्निंग के लिए नहीं है, एक मैसिव समाज सेवा है। जितने भी बच्चे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, क्या ये कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन? Dr. Harsha, am I audible? Yes, sir. Yes, yes. I'm sorry, there was a call, तो disconnect हो गया. Right. Yes, sir. Right. Am I audible? Yes, sir. Yes. All right. So now when we are having this particular thing, we have understood that your learning about exercises, it is a social service. और थोड़ी देर पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि वो सारे बच्चे जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेरा उन बच्चों से एक अनुरोध है, बच्चों क्या ये कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन नहीं है? क्या आप कम्युनिटी की सर्विस नहीं कर रहे हैं? सो दैट इज व्हाई फिटनेस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। एक और सीक्रेट आपको बता दूं, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में, आज के डेट में अगर आप चेक करेंगे तो जिम्स आर इन मैसिव प्रॉब्लम। जिम्स रन नहीं हो रहे हैं, फिटनेस स्टूडियोज रन नहीं हो रहे हैं, फिर क्या करें? ये सवाल तो हमारे मन में चल ही रहा है कि भाई ऐसे फिटनेस स्टूडियोज अगर रन नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर, एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, फ्यूचर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इज ओपन एयर फिटनेस स्टूडियोज। अब ओपन एयर फिटनेस स्टूडियोज आपके बड़ौदा में ही हमारे बहुत सारे बच्चों ने किया है और प्लान किया बड़े सुंदर तरीके से। ओपन एयर फिटनेस स्टूडियोज कैन बी वेरी वेल प्लान्ड ऑन योर रूफटॉप। आपके जिस घर में रहते हैं छत तो है ना, छत के ऊपर जगह तो है, उस जगह में आप बड़े सुंदर तरीके से फ्लावर पॉट्स लगाइए, बड़े सुंदर एयर फिल्टरिंग प्लांट्स आते हैं उनको लगाइए, डेकोरेट करिए, और उसी फ्लोरिंग के ऊपर मैट्स लगा के आप बड़े सुंदर तरीके से योगा, पिलाटेस क्लास, एक्सरसाइजेस क्लास, वेट रिडक्शन सेशन ओपन एयर में ले सकते हैं। कोरोना के एज में ओपन एयर एक्सरसाइज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान बंद कमरे में आने से पहले घबराएगा, और जब बंद कमरे में आप उसको एक्सरसाइज करने के लिए बुलाओगे, जब उसकी सांसें हैवी चल रही हैं, कोई भी इंसान खतरे से खाली में नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आप अपने घर से अर्न कर सकते हो। छत पे जाइए, करिए। और इसके बजाय और क्या रास्ता है सर? इसके बजाय आपके घर का गार्डन, आपके सोसाइटी के सामने वाला बीच वाला गार्डन जो सबके लिए अवेलेबल हो, उस गार्डन में जाके आप ओपन एयर फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। बीचेस में ले सकते हैं, ओपन एरियाज जैसे कि रिवर बेड्स पे ले सकते हैं। इन सभी सुंदर जगहों पे जहाँ पे ग्रुप इकट्ठे हो सकते हैं, मैदानों पे लिया जा सकता है,
और बड़े सुंदर तरीके से लोग आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जेरियाट्रिक्स ग्रुप बनते हैं। बच्चों अगर लाफिंग क्लास चल सकता है तो फिटनेस क्लास क्यों नहीं चल सकता? So this is very important thing for all of us to understand. And now when we are talking about this, let's go into further another very important detail. We use a very important thing about in fitness industry is dumbbell weights, and we used to often tease our students कि भाई जो जिसको बहाना बनाना होता है, जिसको वर्कआउट नहीं करना होता है, सबसे पहले वो बोलता है कि सर समय नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास तो डंबल नहीं रहता, फिटनेस सेंटर कहाँ मिले नहीं मिले। आपके हाथ में ये जो चीज है जिसे रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं, ये एक मूविंग पोर्टेबल जिम है। इससे पूरे शरीर का हर जगह का वर्कआउट बन सकता है, और इसे अगर आप फिटनेस सेंटर में यूज नहीं कर रहे हैं तो फिटनेस सेंटर का नुकसान है। अब देखते हैं कैसे। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है और वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो डिमांड करती है कि सर मुझे आगे चलकर डायस्टेसिस रेक्टाई नहीं लेना है, कुछ आप मुझे ऐसे कोई एक्सरसाइजेस बताइए जिससे मुझे डायस्टेसिस रेक्टाई नहीं लेना है। डायस्टेसिस रेक्टाई हो रहा है लीनिया अल्बा के सेपरेशन की वजह से। लीनिया अल्बा का सबसे अच्छा और करीबी मित्र है कोर मसल्स। जब तक कोर मसल्स की अच्छी ट्रेनिंग हो रही हो तब तक लीनिया अल्बा सेपरेट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन जब लीनिया अल्बा के ऊपर कोर मसल ना होने की वजह से ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस समय में लीनिया अल्बा सेपरेट कर जाती है। तो क्या मैं रेक्टस एब्डोमिनिस को अच्छी तरह से कोर के साथ कोई और ट्रेनिंग दे सकता हूँ? ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस बैंड को कैसे यूज किया जा सकता है। एक सिंपल सा ट्रिक है। अब उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक आप सिखाओगे या एक कोई आम फिटनेस इंस्ट्रक्टर जिसको इसका कोई नॉलेज नहीं है वो सिखा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा अभी आपके कैमरे का व्यू चेंज करेंगे ताकि आप पूरे में हमको देख सको। Now when we are training a pregnant lady, इसमें ऑफ कोर्स मेरे चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप उसे ना ही देखे तो अच्छा है। अब देखे पोजीशन कैसा है, ये पोजीशन है और मैंने क्रॉस किया, एंड व्हेन आई एम क्रॉसिंग आई एम जस्ट लंजिंग विद अ क्रॉस बैंड। सी केयरफुली व्हाट एम आई डूइंग, आई एम लंजिंग विद अ क्रॉस बैंड। इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? क्रॉस दिखाई दे रहा है सभी को, एंड सी ए क्रॉस बैंड से मैं लंज कर रहा हूं। जितने भी मैं इस प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज देने होंगे वो सभी कुछ मैं क्रॉस बैंड से करना पसंद करूंगा। क्यों? फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बाइसेक्टर लाइन पे होता है। जो थेराबैंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसका बाइसेक्टिंग फोर्स लीनिया एल्बा के ऊपर से निकल रहा है। रेक्टस एब्डोमिनिस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। कौन बताएगा? 6 पैक्स वाला बॉडी बिल्डर या 0 फिगर वाली लेडी या एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जिसने इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लिया हुआ हो। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इंट्रिकेट चेंजेस जो फिटनेस एक्टिविटीज में किया जा सकता है केवल एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही ला सकता है। एक और चीज अभी तक आपने योगासन में देखा, आपने एक एग्जांपल रेजिस्टेंस बैंड में देखा, अभी डंबल वेट्स और वेट ट्रेनिंग में भी आजकल बहुत यूज होता है। लोग पूछेंगे कि भाई हम वेट ट्रेनिंग क्यों करें और वेट ट्रेनिंग किस चीज से करें? डंबल उसमें बहुत सारा यूज होगा। अब कुछ ट्रिक्स देखते हैं इसमें भी ताकि आगे चल के आप भी इसे यूटिलाइज कर सकें। आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट आते हैं, ऑफ कोर्स जब मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूं तो मैं अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूं, लेट स्टेजेस की नहीं। रेडियोलॉजिकल फीचर्स मे बी एट 1 2 मैक्स टू मैक्स एट 3। उससे आगे आप इन एक्सरसाइजेस को देने में बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो उनमें हम लोग मीडियालिस रिक्रूट करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मीडियालिस रिक्रूट करने के लिए हम स्क्वाट नहीं दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम होते हैं, थोड़े ऑप्शंस हैं। मे बी क्वाड्रिसेप्स सेट्स दे सकते हैं, लार्ज रेंज और लास्ट रेंज एक्सटेंशन दे सकते हैं। क्या कुछ और किया जा सकता है मीडियालिस को रिक्रूट करने में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की किताबों में अगर आप अपने डिना गार्डनर के पेजेस में भी जाओ तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट डन व्हेन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ फुल रेंज ऑफ मसल। अब फुल रेंज ऑफ द
full working range of the muscle. अगर जब आप full range की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मसल पूरी तरह से काम करने से पहले पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हो, और अगर पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हो तभी इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्टिविटी का फायदा सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या उस मसल को पूरी तरह से स्ट्रेच करके कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेच बढ़ाएं तो शायद स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट भी बढ़ सकता है। एग्जांपल देके समझाऊंगा, बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं लंच करना चाह रहा हूँ। लंच करने के लिए मैंने डंबल अपने कांधे पे रखा है और उसके बाद मैं लंच कर रहा हूँ, जो कि एक स्ट्रेट लंच है। अब ये स्ट्रेट व्यू देखिए, मुझे मीडियलिस के ऊपर अपना लोड इंक्रीज करना है। हो सकता है कि आर्थराइटिक चेंजेस हैं तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स मुझे बहुत पेनफुल हो सकता है, नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब मुझे मीडियलिस रिक्रूट करना है, क्या किया जाए? बड़ा सिंपल सा तरीका है। वेट्स को आप ऑपोजिट साइड में लीजिए और होल्ड टेक्निक अप्लाई करिए। होल्ड टेक्निक मैंने आपको रिपीट भी नहीं करना है। वेट ऑपोजिट साइड में लेने का फायदा क्या हो रहा है? जिस साइड में वेट है उसके ऑपोजिट साइड के मसल्स ज्यादा रिक्रूट होंगे इसे बैलेंस करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? मैंने लैटरल साइड पे वेट रखा हुआ है तो मीडियलिस ऑटोमेटिकली रिक्रूट हो रहा है। अगर विश्वास करना है तो उठा लीजिएगा डंबल घर में क्लास थोड़े से हो जाने के बाद और फिर चेक करिएगा। इमीडिएटली व्हाट हैपेंस इज द मीडियलिस साइड इज गेटिंग रिक्रूटेड। रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं है, जॉइंट का वियर एंड टियर भी रिड्यूस हो जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि आप मीडियलिस की लोड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई हानि होने से भी रोक रहे हैं, नुकसान होने से भी रोक रहे हैं। अब ये एक तरीका हो गया। क्या कुछ और तरीका है? देखते हैं। और कोई तरीका है जो हम फिटनेस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अब लंच हमने किया था, इस पोजीशन में लंच किया था। मैंने कहा था कि अगर मसल को फुल लेंथ में रखा जाए और स्ट्रेच पोजीशन में रखा जाए तो स्ट्रेंथनिंग का भी इफेक्ट जो रहेगा वो पूरे रेंज में बहुत अच्छी तरह से पाया जाएगा। थोड़ा सा वाइड आउट लंच करिए। जब आप वाइड आउट लंच कर रहे हैं, मीडियलिस ऑटोमेटिकली इन स्ट्रेच पोजीशन है और इसके वजह से मीडियलिस का लोड जबरदस्त बढ़ जा रहा है। लैटरलिस पे लोड लेना है, क्रॉस लंच करिए। ऑटोमेटिकली लैटरलिस अब क्रॉस लंच में है, क्रॉस पोजीशन में है, पूरे लेंथ में स्ट्रेच है, तो लैटरल मसल्स के ऊपर इस लंच के साथ साथ ज्यादा फोर्स आप रिक्रूट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इतना चेंजेस वेट ट्रेनिंग के दौरान क्या एक सिक्स पैक वाला अनक्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कर सकता है? क्या एक जीरो फिगर वाली अनक्वालिफाइड डांसर कर सकती है? या फिर इसके लिए एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट विद गुड इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है? आप खुद सोचिए किसकी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों में। इन चीजों का अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप सबसे पहले अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि योग में कैसे चेंज किया जा रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बैंड में कैसे चेंज किया जा रहा है, उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि भाई हम वेट ट्रेनिंग में डंबल्स के साथ कैसे इन एक्सरसाइजेस को चेंज कर रहे हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जो और हमें करना है सीखने के लिए, हम लोग कोर ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोर मसल्स की ट्रेनिंग के समय में हम लोग कई बार मार खा जाते हैं, खास करके जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही या फिर कोई बैक पेन वाला पेशेंट आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे कोर ट्रेनिंग करनी, मुझे अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। तो हमारे पास कोर ट्रेनिंग के लिए प्लैंक्स हैं, हमारे पास पिलाटेस के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन शायद प्रेग्नेंट लेडी के लिए खतरे से खाली नहीं है, और उसी तरह से शायद एक बैक पेन वाले पेशेंट के लिए भी ये खतरे से खाली नहीं है। क्या करें? कोई और तरीका है? जरूर है, देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। करना क्या है, आपको एंगल फिर से एक बार चेंज करके दिखाता हूं। Now, the basic thing that you need to do is आप केवल वन लेग बैलेंस करिए और साथ में साथ आर्म रेज कर दीजिए। और ज्यादा दिक्कत करना चाह रहे हैं तो आर्म्स को मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट दीजिए। इसका साइंस क्या है? बड़ा सिंपल और बेसिक साइंस। सिंपल साइंस कैसे है कि जैसे ही आपका बेसल सपोर्ट छोटा होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब होता है, बैलेंसिंग सिस्टम का सबसे करीबी मित्र
है कोर मसल्स। तो कोर मसल ऑटोमेटिकली फंक्शन करना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका फिजियो बॉल वर्कआउट क्यों वो ज्यादा कोर मसल रिक्रूट करवाता है, क्योंकि अनस्टेबल सरफेस है। इसी वजह से वन लेग स्टैंडिंग इज मोर कोर फायरिंग देन डबल लेग स्टैंडिंग। इसके साथ साथ जब आप आर्म रेज कर रहे हो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊंचा जा रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा जा रहा है तो फिर बैलेंस के साथ क्या होने वाला है, डिस्टर्ब होगा। बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो कोर मसल रिक्रूट करेंगे, और कोर मसल जब रिक्रूट होगा तो आपका प्लैंक का फंक्शन यहाँ हो जा रहा है। कौन बताएगा? 6 पैक्स वाला बॉडी बिल्डर बताएगा, 0 फिगर वाली लेडी बताएंगी, या फिर एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट कम इंस्ट्रक्टर बताएगा? आप डिसाइड करें, आपकी जिम्मेदारी। यहाँ तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे जहाँ पे हमको ये सीखना है और ये समझना है कि क्या क्या चीजें, why a physiotherapist should be involved in this particular thing. Now it is very very important for all of us to understand another big problem, major problem. मैं डॉक्टर सरफराज से भी जब पिछले सप्ताह बात कर रहा था तो मैं ये सोचा था और प्लान किया था कि इस विषय में जरूर कुछ समय बोलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल्स हैं जो आप अपने क्लिनिक में काम करने जा रहे हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में काम करने जा रहे हैं, और सिचुएशन आपके घर के बाहर बहुत खतरनाक है। जब आपके घर के बाहर का सिचुएशन इतना खतरनाक है और तकलीफदेह है, क्या आपकी तैयारी उसके लिए है? क्या आपने उसके लिए प्लान किया है? इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और क्या जानना जरूरी है? देखिए, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट होकर अपने हेल्थ का खुद ध्यान नहीं रख पाओगे तो आप दूसरे जनता को झूठ बोल रहे हैं, और झूठ ज्यादा देर चलता नहीं है। तो इसी वजह से जानना बहुत जरूरी है। आपके प्रोफेशन का एक दूसरा नाम है फिजिकल थेरेपी, एंड इफ यू हैव नेवर मूव्ड योर फिजिक, हाउ कम आर यू अ फिजिकल थेरेपिस्ट? क्या हम और आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? जब आप किसी बैक पेन के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और खुद नीचे झुकने में आपको 2 मिनट का समय लग रहा है, दूसरे बस पेशेंट को बता रहे हो स्क्वाट करना है और अपना नी का दर्द छुपा रहे हो, शोल्डर उठाने का एक्सरसाइज दूसरे को बता रहा है लेकिन खुद अपने कभी इस एक्सरसाइज को किया नहीं है, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? मजाकिया तौर पे है, लेकिन इसको जरूर अपने दिल में उतारिएगा। कई बार हम लोग थेरेपिस्ट से लैपटॉप थेरेपिस्ट ज्यादा बन जाते हैं। एक्सरसाइज ग्राउंड पे नहीं, लैपटॉप में ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं। नहीं चलेगा, क्योंकि क्लाइंट जब देखता है कि हाँ ये मास्टर जो है, इंस्ट्रक्टर जो है, थेरेपिस्ट जो है खुद कितने सुंदर तरीके से कर रहा है, तो उसके मन में एक छवि बैठ जाती है कि ये कमाल का एक्सरसाइज था, दिखाने वाले ने किस सुंदर तरीके से दिखाया था। जब ये नहीं दिखाओगे ना तो सामने वाला जब दिखाएगा तो उसका ज्यादा चलेगा, आप हार जाओगे। सो ये एक तरफा बिजनेस वाला कंपोनेंट है। अब आप ही के सिचुएशन में a physiotherapist should be an epitome example to explain the entire world that exercise is a major instrument for building up immunity. जो योग नहीं कर रहा, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो घर बैठे कुछ खाकर या कुछ पीकर या फल खाकर या कुछ स्पेशल फूड खाकर इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकता है। सीधी बात, इसके पीछे कोई और दो राय नहीं है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, आखिरी सवाल आप सभी बच्चों से, सभी जो श्रोतागण सुन रहे हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मेरे को एक सवाल, सभी बच्चों लोग ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी किसी सैनिक को मिलिट्री में जंग पे जाते हुए देखा है? देखा है वो कितनी अच्छी तरीके से अपने बंदूक को तैयार करता है? देखा है वो अपने बॉडी के ऊपर बुलेट प्रूफ वेस्ट कैसे डालता है? आपने देखा है वो किस तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज करता है? तो इस तरह से उसकी वो तैयारी होती है जब वो लड़ने जाता है। इस तैयारी के साथ वो साहसमंद तो है ही है, लेकिन साहस के साथ साथ चालाक और बुद्धिमान भी है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज एन इंस्ट्रक्टर, कल को जब आपको अपने घर से बाहर कोरोना से युद्ध करने के लिए जाना है तो आपका हथियार है आपका एक्सरसाइज, आपका हथियार है आपका मास्क, आपका हथियार है आपका सैनिटाइजर, आपका हथियार है आपका प्रॉपर ड्रेसिंग। क्या आपने इन सारे चीजों को अपनी जगह पे रखा है? अगर नहीं रखा है तो बच्चों आपको सीधा जवाब देता हूँ, कुछ घुमा फिरा के नहीं,
आप अपने पूरे परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हो। इसी वजह से अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आज से, अभी से या इसी क्षण जैसे ही इस प्रोग्राम बंद होगा, अपने एक्सरसाइज मैट्स को उठाइए और एक्सरसाइज करना शुरू हो जाइए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप इम्यून सिस्टम को चार्ज नहीं कर रहे हैं, और इम्यून सिस्टम को जब आप चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं। और जब आप खतरे में हैं, दूसरों को खतरे से कैसे निकालोगे? फ्लाइट में जब आप जाते हो तो आप एयर होस्टेस को कभी सुने हो? आप एयर होस्टेस को देखोगे, वो बड़े सुंदर तरीके से बताती हैं कि जब ऊंचाई पे जाकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से बताती हैं, ऊंचाई पे जाने, इतना खतरनाक बात बड़े आराम से बता देती हैं कि इतने ऊंचाई पे जाओ कि ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो ऊपर से मास्क गिरेगा, पहले खुद को लगाइए फिर दूसरे को लगाइए। क्या हम इसको पालन कर रहे हैं? क्या हम खुद को लगा रहे हैं फिर दूसरों को लगाने से पहले? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं, हम भी खतरे में हैं। तो इसी वजह से this was a highlight and a preview. If you really understand that you're a physical therapist, you're a physiotherapist, you must take up fitness. Because if you have not taken up fitness, you are not preaching truth to your patients. You are not preaching truth to your family. अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी से मैं ये इंस्ट्रक्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को चालू करिए, अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को प्रैक्टिस करिए और दूसरों को सिखाइए। क्योंकि जब पेशेंट आता है तो वो आपको देख रहा होता है, आपके शरीर से उम्मीदें होती हैं, उसको आपकी कला से उम्मीदें होती हैं। निराश ना करें अपने पेशेंट को। और आपकी सेवा में हमेशा इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग आपके शहर में आती रही है और सालों से आती रही है। हम लोग कई तकरीबन 2010 से आपके शहर में आते हैं, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कभी ना कभी आप सभी बच्चों से हमारे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में फिजिकली मिलेंगे और फिजिकली मिलकर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इन सब चीजों को किया जाता है। तब तक इन सभी बच्चों ने, हमारे जो दोस्तों ने, बच्चों ने इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिस प्रोग्राम से घर बैठे, ये हमारे घर का ही सीन है, ये घर बैठे हम आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सरफराज सर और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेहुल सर को नमस्कार बताना चाहूंगा। सर, हमारी तरफ से आपके लिए एक माफी भी है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा प्लान किया कि हम आपके साथ, आपके पास आकर कुछ काम करें, लेकिन ये आशीर्वाद का मौका मिला नहीं है। तो आगे कभी भी हमारे को मौका मिले, हम जरूर आपके पास आएंगे और सीखेंगे, सिखाएंगे। सरफराज तो हमारा पुराना बच्चा है, हम उसे जानते हैं, प्यारा बच्चा है। हर्षा, entire team, thank you so much. And if anybody wants to ask any question, you can definitely ask. In this particular time, we should all keep ourselves, each other, in each other's prayer. This is very, very important. And keep healthy, keep exercising. और इन एक्सरसाइजिंग के समय में नींबू शरबत, गर्म पानी का गार्गल और वेपर इनहेलेशन करना ना भूलें। छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत करोड़ों का टिप है इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ से। नींबू का शरबत, गर्म पानी और नमक का गार्गल और वार्म वाटर वेपर इनहेलेशन, इसको पूरे समय में करते जाइए। पूरा दिन नहीं, एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार, आपको बहुत फायदा होगा। Thank you very much. Harsha, any questions anybody wants to ask? You can go ahead and ask. I think I am on time. Yes, sir. I request all the participants, if they have any questions, they can just write it in the comment box. Sir, we'll just wait for 1-2 minutes. Yes. And if the question is when are you coming to Baroda, you have to ask when the flights are on. As soon as the flights are on or the railways are moving smoothly, we will come down to Baroda. We are expecting that sometime in January or February we will come down and have our program over there. Sir, one of the participants, Millie Jakaria, has asked, sir, from where we can gain more knowledge about it? Is there any course for it? Yes, we have regular courses coming down, and every year
we have 2 programs coming down in your city itself. It is usually in the month of February and July. We have proper quality instructor training going on from Indian Academy of Fitness Training regularly. Lots of your friends, seniors, students have been doing the training programs under Indian Academy of Fitness Training, and we are proud of them. We love them and we are really proud of them. And many of your teachers have also undergone this particular training, and I am really respectful for them. So be in touch. Get in touch with our Facebook ID. Facebook ID is spelling as Surajit IAFT Chakravarti, wherein if you are sending in a friend request, all the advertisement from our academy will always be put on that. Same name for the Instagram also, Surajit IAFT Chakravarti. You can always get in touch with us. We will be happy to serve you. Consider us as your servant who are ready to happily serve you and teach you. Yes. Sir, everybody is asking regarding this workshops and all. I guess now they got the answer of that. Yes. For 2 specific months. One, of course, not this year, but next year, February and July. February will be one program and July will be the other program. These are standard dates, standard months, but not this July, not next July. If you expect me to come next July, then I have to find out some other route. It is not practical. So next year, February is our first chance to meet. Sir, there is one question from Rupal. Yes. She's asking if we are planning to take an open air yoga class at present, what precautions should we take? What I am taking, I will share that. I have bought a sanitizer gun for myself. It is something that sprays up the entire body. Temperature measurement, pulse oximeter. These are basic things that you must be having in your center. As soon as the patient or a client comes to your center, specifically you need to sanitize the person, you need to take the temperature, you need to take the oxygen saturation. These are basic things. It is important that they should carry their own yoga mat and their own water bottle. These are the basic requirements, and along with that, social distancing. Keep at least 1 big arm distance between each other. Remember MSD. महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा. उससे क्या पता चलता है? मास्क फॉर M, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, D फॉर धोना. धोते रहिए हाथ को जितने बार हो सके. ऑफ कोर्स योगा क्लास में आप प्राणायाम करते करते तो हाथ नहीं धो सकते, तो इसीलिए सैनिटाइज करके योग करने के लिए बैठिए. These are the basic things that you can keep in precaution, and when you are doing pranayam at that particular time, it is very important and intrigued to make everybody face in opposite direction. So when you do that, nobody is breathing on each other. That's very important. आप जब प्राणायाम करवा रहे हो तो एक बड़ा सर्कल बनाइए. बड़ा सर्कल में लोग बैठेंगे, गैप मेंटेन होगा और हर कोई दूसरी तरफ बाहर की तरफ फेस कर रहा है. तो जो ब्रीथ कर रहे हैं वो भी वो बाहर की तरफ ब्रीथ कर रहे हैं, अंदर की तरफ नहीं. This makes it easy so that nobody is breathing inside the group. These are the basic precautions that usually I take in my center when we are doing exercises now. Yes, Bina. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are done with the questions. Okay. So thank you very much, Harsha. Thank you very much, Sarfaraz. And thank you, Mehul sir, for giving me a chance to giving me a beautiful platform right from my home to talk to all these nice children. And all of you are also invited to come down to Mangalore whenever possible. We have programs and courses running down for 15 days over here in Mangalore also. Our website and our groups will be highlighting that in April, August and December. We have twice a year programs of coming down to Mangalore also. Beautiful city, but only once when your traveling is safe, not before that. Anything else? Dr. Harsha, if I can help? Yes, sir. Thank you for such an eye-opener session, sir. I am pretty much sure that this informative webinar provided a great insight to all the participants. Now, I would like to thank and show my gratitude to our founder, president and chairman, Shri Jagdish Bhai Patel, sir, and our campus managing director, Shri Dhruv Bhai Patel,
Sir, and Joint Managing Trustee, Srimati Kamalben Patel Ma'am. I would also like to thank our campus director, Shri H.K. Patel Sir, our principal, Dr. Mehul Jadhav Sir, our vice principal, Dr. Sarfraz Nawaz Shah Sir, also Dr. Avni Ma'am, who is the HOD of the computer department, Kade Dada for the graphic designs, and last but not the least, to all the faculty members, participants, and students. Thank you all once again. Thank you so much. Thank you, Harsha, and I'm always available for any other kind of service required from your institute. Please let me know. Dr. Sarfraz, Dr. Harsha will always be happy. This is an easy medium to reach you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.